Hey everyone, do we know that the bacteria in our stomachs, they are the most important factor in our health? Many of us don't know that. All the autoimmune diseases that we have, including asthma, including heart diseases, including leaky gut, including diabetes, including so many things, originate from the gut bacteria. Yes guys, this is the latest science. Gut bacteria is very important. सब कुछ पेट से शुरू होता है, ये हमारे पूर्वज अच्छी तरह से जानते थे. हमने हमारे खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, व्हाट वी शुड ईट एंड व्हाट वी शुड नॉट ईट. हमारा जो गट बैक्टीरिया है, इसको माइक्रोबायोम बोलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हेल्थ के अंदर. यहाँ तक इट्स इवन बिलीव्ड दैट द गट बैक्टीरिया इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. दैट मीन्स आई गॉट माइन फ्रॉम माई पेरेंट, दे गॉट देयर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. So most of the genetic diseases that we have today might not come from any other thing but from the gut microbiome. So people are also saying that if you can manage your gut microbiome, you can manage almost anything. And they're even talking about implanting the gut bacteria from one person to the other to manage diseases. That means if there's a healthy person and if you take the bacteria out of him, out of his intestine, and plant that bacteria in the unhealthy person, you're going to make him recover from whatever illnesses he had, and his health is going to be as good, almost as good as the person from whom the bacteria was taken. In our Ayurvedic system, we had the Panch Karma. One of the 5 karmas that we did was Basti. Basti was nothing but enema of various oils and various infusions into your rectum, which basically changed the microbiome of your gut. So we understood this science a long time back. Without spending any more time on this, I'm straight away going to jump into what a person should and should not eat. I can make this video very short and cut it off right here after this sentence, that you know what a pregnant woman should eat? Well, do you know what a pregnant woman should not eat? हम सबको पता है. हमको पता है she should not take alcohol, she should not smoke, she should not etc etc. Why? Because she's bringing up a new life in a womb and she needs to eat healthy. So healthy क्या है वो instinctively हमें पता है. So अगर आज कोविड का स्केयर फैला हुआ है and we want to eat healthy, well all you have to do is eat just like a pregnant woman, because हमें पता है कि हेल्दी खाना क्या है. ये वीडियो यहीं पे खत्म हो सकता है, but I'm not going to do that. I'm just saying that हमें पता है हेल्दी क्या है, हमें पता है कि अनहेल्दी क्या है, लेकिन हम फिर भी दुनिया से सवाल पूछते जा रहे हैं क्या खाएं क्या ना खाएं. और लेट्स जस्ट जंप टू वेरियस टॉपिक्स में एक एक करके टॉपिक लेता हूं. मिल्क, इज मिल्क हेल्दी और इज मिल्क नॉट हेल्दी? हम दूध पिएं कि दूध ना पिएं? वेल, दूध इज हेल्दी and is unhealthy, depends on who's having it. अगर आप ऑलरेडी अच्छे खासे मोटे हैं, इन द सेंस आप पतले दुबले नहीं हैं, और आप ऊपर से भैंस का दूध पिएंगे, सो ऑब्वियसली आपको ऑलरेडी नरिशमेंट की जरूरत नहीं थी, आप फिर भी नरिशमेंट दे रहे हो तो उसको हार्म करेगा. लेकिन अगर आप दुबले पतले हैं, आपको नरिशमेंट की जरूरत है, आपकी बॉडी बहुत ही वीक है, आप ऐसे आदमी को दूध देंगे तो उसको फायदा करेगा. दूध से कफ बनता है. अगर एक इंसान है जिसको कफ की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, अस्थमा, खांसी की कोई इशू है उसको, और उसको आप दूध दे रहे हैं, तो फिर यू नो व्हाट्स गोना हैपन. आयुर्वेद में अलग अलग जानवरों के दूध को अलग अलग वर्णन है, जैसे गोट्स मिल्क, काउज मिल्क, बफलोज मिल्क. वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द देसी काउ विच इज A2 मिल्क, जो कि पूरी दुनिया आजकल पागल हो रखी है A2 मिल्क के पीछे. हाँ, वो हमारा A2 मिल्क है जो हमारा देसी गाय का मिल्क है. A2 मिल्क की कहानी बाकी सब मिल्क से अलग है. सो वेन एवर आई से काउ मिल्क, आई एम रेफरिंग टू A2 मिल्क ओनली. सो A2 मिल्क ही होता था पहले पूरी दुनिया में, लेकिन धीरे धीरे करके काउज म्यूटेट कर गई और उन्होंने A2 मिल्क देना बंद कर दिया. सो अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप वगैरह में ज्यादातर कंट्रीज में जो मिल्क मिलता है वो A2 मिल्क नहीं होता है. दूध कैन नॉट बी हैड विथ एनी काइंड ऑफ ऑयल और एनी काइंड ऑफ सॉल्ट. तो अगर आपने डिनर के बाद दूध ले रहे हैं, तो उस डिनर में आपने अगर ऑयल खाया है और सॉल्ट खाया है, तो उसके बाद आप घंटे 2 घंटे तक आप दूध नहीं ना लें, बिकॉज इट इज नॉट एडवाइज्ड एज पर आयुर्वेदा. देयर आर 2 मेन प्रोटीन्स इन मिल्क, वन इज केसिन एंड वन इज वे. जो हम पनीर निकालते हैं दूध में से वो मोस्टली केसिन प्रोटीन होता है, और जो पीछे पानी रह जाता है, उसका हरा सा पानी रह जाता है, उसके अंदर वे प्रोटीन होता है, जिसको सुखा के वे मिलता है, जो आजकल जिम्स में खाया जाता है. तो जो हमारी माँ का मिल्क होता है उसमें वे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, और केसिन बहुत कम होता है. लेकिन जो गाय भैंस का दूध होता है उसमें केसिन बहुत ज़्यादा होता है, 70-80% तक होता है, और वे बहुत कम होता है. तो जो हमारी माँ का मिल्क है जो हम पीते हैं वो उसमें वे ज़्यादा होता है, तो वे इज कंसिडर्ड हेल्दियर फॉर ह्यूमन बींग्स. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव लैक्टो इंटॉलरेंस, जिनको कि दूध नहीं पचता है, वो केसिन की वजह से प्रॉब्लम आती है. रेस्ट आप रिसर्च कर लीजिए, आपको कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, एक्सेट्रा आप रिसर्च कर लीजिए. बट दिस इज द मेजर थिंग अबाउट मिल्क. एक जो हमारे कल्चर ने एक चीज को अडॉप्ट कर लिया है, और हमारे कल्चर नहीं पूरी दुनिया के सारे कल्चर्स ने, वो हमने शुगर को एक सेलिब्रेशन का एक चीज बना दिया. हमने मीठी चीज खाओ, मीठी चीज खाओ. मीठी चीज है क्या? जब हम लोग जंगल में रहा करते थे
सो व्हाट हैपेंड कि जो जंगल फ्रूट्स होते थे जो स्वीट होते थे टेस्ट में, वो जहरीले नहीं होते थे, और जो स्वीट नहीं होते थे उनका चांस था कि जहरीले हो जाए, जैसे कड़वा हुआ या खट्टा हुआ। तो हमारे अंदर एक टेस्ट आ गया मीठा खाने का। तो इस बात को जो कमर्शियल कंपनीज है उन्होंने ऐसा एक्सप्लॉइट किया कि मीठा ये खिलाओ, वो खिलाओ, मीठा 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 मीठा। द अमाउंट ऑफ शुगर दैट अ पर्सन हैज इन द यूएस, मेरे पास यूएस के फिगर्स हैं, हैज गॉन अप मोर देन 10-15 टाइम्स ओवर द लास्ट ऑलमोस्ट 70-80 ईयर्स। दैट मीन्स एक साल में जितना एक आदमी शुगर खाता था वो उसका 10 से 15-20 गुना ज्यादा खा रहा है, और वो बेचारा खा रहा है, उसको पता नहीं कि अपना कितना नुकसान कर रहा है। शुगर जो रिफाइंड फॉर्म की शुगर है वो हमारी बॉडी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर ऑलरेडी शुगर होती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्ब्स जो होते हैं वो हमारे मुंह के अंदर से उसकी शुगर बननी शुरू हो जाती है। हमारे मुंह के अंदर टाइलिन करके एक एंजाइम होता है, वो उसको शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। जब तक हमारे गले में भी होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर रहा होता है। जो जब वो पेट में पहुंच जाता है और जो शुगर में कन्वर्ट नहीं हुई होती है वो हमारे पैनक्रियाज में एमाइलेज होता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा बेसिकली बॉडी का काम है कि जो भी हम कार्ब्स खाते हैं उसको 100% शुगर में कन्वर्ट करता है वो, और फिर वो शुगर हमारी बॉडी यूज करती है टू एनर्जाइज अवर सेल्स। हम लोग कहते हैं कि चलो हम शुगर नहीं खाएंगे, लेकिन हम दिन भर मैदे की चीजें खा रहे हैं, आटे की चीजें खा रहे हैं, चावल की चीजें खा रहे हैं, इवन दाल इज 70 to 80% कार्ब्स। एंड इफ यू टेक व्हीट एंड राइस, वो भी बहुत कार्ब्स होते हैं उसके अंदर। तो हम लोग शुगर को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन हम आटे की चीजें खाए जा रहे हैं, मैदे की चीजें खाए जा रहे हैं, चावल खाए जा रहे हैं, या इवन दाल खाए जा रहे हैं, तो हम शुगर ही खा रहे हैं। सो जिन लोगों को डायबिटीज का इशू है, इफ दे कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ grains and the pulses that they have also, their sugar will go away in a day because it will not take long, because जो आप शुगर डाल रहे हो अंदर अपने बॉडी के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा जो पैनक्रियाज है इंसुलिन बनाता है। जब ब्लड के अंदर इतना शुगर हो जाता है कि उसको इंसुलिन न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, तो ऐसे इंसानों को हम बाहर से इंसुलिन डालनी पड़ती है। तो इंसुलिन की कमी क्यों हुई है? क्योंकि बॉडी में इतना शुगर डाल लो। शुगर किस फॉर्म में डाल लो? कार्ब्स के फॉर्म में डाल लो। कुछ लोग शुगर भी खाते हैं डायरेक्टली, कुछ लोग छोड़ देते हैं, लेकिन कार्ब्स खाना नहीं छोड़ते हैं बिकॉज उनको पता ही नहीं है। सो व्हाट यू डू इफ यू टर्न टू फ्रूट एंड वेजिटेबल डाइट, मतलब अपने आहार में 80-90% आप फ्रूट वेजिटेबल्स खाइए। इफ यू टेक एनी फ्रूट, आप उसमें अमाउंट ऑफ कार्ब्स देखिए, फ्रूट में 80-90% तो पानी होता है। एनी फ्रूट दैट यू टेक, वेजिटेबल्स में ऐसा ही होता है। तो बचा जो 10-15-20% बचा जो कि पानी नहीं होता, उसका हो सकता है 50-60%, 70% कार्ब्स हो, लेकिन टोटल में से कितना होगा? वो बहुत कम। सो अगर आप फ्रूट्स कितना भी खा लें तो आप बहुत ज्यादा कार्ब्स नहीं खा सकते हैं। और अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इंसुलिन लेनी कम करनी पड़ेगी। मतलब डॉक्टर बता देगा या शुगर बहुत गिर जाएगी आपके लेवल, तो आपको अपने आप ही कम करनी पड़ेगी। मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी बॉडी में कार्ब्स जाते हैं उसमें जो व्हाइट कार्ब्स होते हैं, जैसे कि मैदा हो गया, जैसे कि शुगर हो गई या रिफाइंड शुगर हो गई, ये इमीडिएटली शुगर पे कन्वर्ट होते हैं। और बिकॉज ये बहुत जल्दी कन्वर्ट होते हैं तो हमारी जो ब्लड की शुगर लेवल है एकदम से स्पाइक मारती है। जब एकदम से स्पाइक मारेगी तो आपको पता है क्या होने वाला है। किसी को भी डायबिटीज नहीं होगी अगर आप खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल ज्यादा खाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हम ऑयल लें तो ऑयल कौन सा लें। रिफाइंड ऑयल वो ऑयल होता है जो कि हमने किसी चीज में से निकाला, वो निकल नहीं रहा था, हमने उसमें कुछ केमिकल डाल के या कुछ हीट डाल के उसको बहुत गर्म करके उसको निकाला उसके अंदर से, तो वो रिफाइंड ऑयल हो गया। हमने जब ऑयल को एक बार गर्म किया, इट लूजेज मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज और अब वो हेल्दी नहीं रहा खाने के लिए। लेकिन जो ऑयल कोल्ड प्रेस्ड है, यानी कि बिना गर्म करे निकाला गया, नेचुरल तरीके से निकाला गया, कोई केमिकल नहीं यूज करा गया, वो ऑयल मोस्टली हेल्दी है। जैसे कोकोनट का हो गया, वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ऑयल्स। कोकोनट ऑयल के अंदर एक लॉरिक एसिड होता है जो कि बहुत इफेक्टिव होता है एज एन एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल। और अगर हम बात करें, जैसे आजकल बहुत फैड है ऑलिव ऑयल खाने का, इस सब खाने का, तो हमारा गट माइक्रोबायोम है, इतने हजारों सालों से चलता आ रहा है मेरे पेट के अंदर, आपके पेट, सबके पेट के अंदर। वो स्पेसिफिकली डिजाइंड है कि हमारी लोकल चीजें खाने के लिए और सीजनल चीजें खाने के लिए। दैट मीन्स अगर आप दिसंबर के महीने में अगर आप आम खा रहे हैं तो गट माइक्रोबायोम गड़बड़ा जाएगा। एंड इफ यू ईटिंग एक्सोटिक वेजिटेबल्स, एक्सोटिक फ्रूट्स जो कि इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं, या जहां भी आप रहते हैं उस जगह के नहीं है, तो वो भी आपके गट माइक्रोबायोम पहचानता नहीं है, उनको ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैठे हैं, कीवी खा रहे हैं, आप एवोकाडो खा रहे हैं, या आप ऑलिव खा रहे हैं, ऑलिव ऑयल खा रहे हैं, वो हमारे इंडियन फूड्स नहीं है, इंडियन चीजें नहीं है हमारी, तो हमारा गट उसको पहचानता नहीं है। एंड इट टेक्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर अ गट टू एक्लिमेटाइज टू अ न्यू काइंड ऑफ डाइट। वी हैव टू ईट लोकल। जो आपके जहां आप रहते हैं उसके 400-500 किलोमीटर दूर में जो भी खाना होता है उससे ज्यादा दूर का खाना ना खाएं। एंड ट्राई टू ईट द चीपेस्ट फ्रूट, बिकॉज चीपेस्ट फ्रूट हमेशा सीजनल होता है। एंड ट्राई टू ईट द चीपेस्ट वेजिटेबल, चीपेस्ट वेजिटेबल हमेशा सीजनल होगी। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हम गुड़ खाएं कि नहीं खाएं, गुड़ अच्छा है कि चीनी अच्छी है, या क्या अच्छा है। सो लेट मी पुट इट दिस वे, जो सबसे अच्छा है इनमें से वो तो है गन्ना। गन्ना खाना इज द मोस्ट हेल्दी। गन्ने का जूस उससे नंबर 2 पे मैं डालूंगा। और उसके अलावा जितनी भी चीजें उसके आगे हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अच्छाई में चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड़ है, वो एक्सट्रैक्टेड है, वो
फुल गन्ना नहीं है, इट इज नॉट अ होल फूड। तो उसमें काफी चीजें गन्ने की हैं लेकिन 100% गन्ना नहीं है वो। फिर आपने गुड़ में से और एक्सट्रैक्ट कर लिया, शुगर निकाल ली, फिर उसको रिफाइन कर दिया, रिफाइंड शुगर निकाल के। तो जैसे आप रिफाइन करते जाते हैं उसको, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी बॉडी के लिए कम होती जाती है। अब बात करते हैं टर्मरिक की, हल्दी की। हल्दी क्या है? हल्दी एक क्रिएशन का बनाया हुआ, हल्दी एक नेचर का बनाया हुआ एंटीबायोटिक है। अगर आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है, अगर आपको किसी तरह से कोई जर्म्स मारने हैं, बॉडी स्किन में आपके इशू है, तो आप हल्दी का लेप लगा लीजिए। हमारे ट्रेडिशन में व्हेन वी यूज्ड टू हैव पीपल गेटिंग मैरिड, तो शादी के पहले उनको पूरी बॉडी के ऊपर हम हल्दी लगाया करते थे। शायद इसे लगाया करते थे ताकि अगर किसी को कोई स्किन इशू है तो स्किन इशू अपने स्पाउस को ट्रांसफर ना कर दे। सो वी यूज्ड टू ट्रीट द पर्सन विथ हल्दी। अगर आप उसको हम ओरली खा रहे हैं तो अंदर भी वही सेम काम करता है। बट रिमेंबर, जितनी भी बातें हमारे लिए बताई गई हैं जो कि हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छी हैं, चाहे वो टर्मरिक हो, चाहे वो जिंजर हो, चाहे वो तुलसी हो, जो भी हो, प्लीज लिमिट में खाइए। ये नहीं कि आप हल्दी अच्छी है तो आप एक प्लेट भर के हल्दी खा गए, ऐसा नहीं है। अगर आप तुलसी खा रहे हैं तो 2-4 पत्ते बहुत हैं। तुलसी की एक प्रॉपर्टी होती है, जो पत्ता होता है जब दांत पे लगता है, आपके टच करता है तो दांत को इरोड कर देता है, खत्म कर देता है। ट्राई कि वो आपके दांत से ना टच करे। जिंजर की बात करते हैं। जिंजर में क्या है? जिंजर भी एक नेचर का दिया हुआ एक अपने पास एंटीबायोटिक है। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वो इट्स वेरी गुड फॉर पीपल जिनको की डाइजेशन का इशू है या जिनको कफ का इशू है। हनी की प्रॉपर्टी है कि हनी को जिस चीज के साथ हम खाते हैं, एक तो हनी को कभी भी गर्म मत खाना। हनी कभी भी जरा सा भी गर्म नहीं खाया जाता है। अगर आपको पानी में भी खाने को बोला है, उस पानी को गर्म करके ठंडा कर लीजिए बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, फिर उसके अंदर हनी डालिए और फिर उसको खाइए। हनी की एक प्रॉपर्टी है कि हम जिस चीज के साथ खाते हैं उस चीज को हमारी बॉडी के अंदर तक लेकर चला जाता है, पतली पतली कोशिकाओं के अंदर लेकर चला जाता है। दैट मीन्स इफ यू हैव जिंजर विद हनी तो जिंजर को अंदर तक लेकर जाएगा। इफ यू हैव टर्मरिक विद हनी तो टर्मरिक को अंदर तक लेकर जाएगा। सो हनी बेसिकली एक व्हीकल है जो हम यूज करते हैं। वो शुगर वालों को थोड़ा सोच के खाना चाहिए, बिकॉज है तो वो शुगर ही, राइट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू से। इसमें अगर आप देखेंगे कि जो शुड नॉट ईट, वो आपको पता है क्या नहीं खाना चाहिए। शुड यू हैव अल्कोहल और नॉट? यू नो दैट अल्कोहल इंटरफेयर्स विद द स्लीप, रिमेंबर दिस। इट में इंड्यूस स्लीप बट द क्वालिटी ऑफ स्लीप इज नेवर गुड आफ्टर हैविंग अल्कोहल। आप डीप स्लीप में नहीं जा पाएंगे। आप जब डीप स्लीप में नहीं जाएंगे तो आपको बॉडी को पूरा रेस्ट नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी रीजनरेट नहीं करेगी स्लीप के अंदर और आपके ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, तो आप टायर्ड फील करेंगे जब आप उठेंगे। एंड इफ यू हैव टू मच ऑफ अल्कोहल तो आप बहुत टायर्ड फील करेंगे, जिसको हम हैंगओवर बोलते हैं। जहां तक आपके कैफीन का सवाल है, कोई भी आपके जैसे चाय या कॉफी है तो ट्राई कीजिए कि आफ्टर 2 o'clock ना लें, बिकॉज वो रात को आपका स्लीप से इंटरफेयर करेगी। स्लीप से इंटरफेयर करेगी तो आपको फिर रेस्ट नहीं मिलेगा। हमको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, इसलिए हमको प्रॉपर रीजनरेशन की जरूरत है एवरी टाइम वी गो टू स्लीप एट नाइट। खाना खा रहे हैं तो पहले सैलेड खाइए, सीजनल सैलेड खाइए और उसके बाद खाना खाइए। दैट मीन्स इफ यू हैविंग से लंच, सो हैव अ प्लेट फुल ऑफ सैलेड फर्स्ट, देन यू हैव योर लंच। सेम डिनर में कीजिए। अगर आपको स्नैकिंग का मन कर रहा है, बेटर टू स्नैक ऑन फ्रूट्स और स्नैक ऑन कोकोनट और स्नैक ऑन समथिंग विच इज अ होल फूड। वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए। जितना फूड अलाइव होगा, जितना फूड होल होगा, जितनी उसके अंदर जिंदगी होगी, वो उतनी आपको जिंदगी देगा। मरा हुआ फूड आपको जिंदगी नहीं दे सकता है। बिस्किट मरा होता है, ब्रेड मरी होती है। अगर आप बिस्किट को जमीन में गिरा देंगे तो वहां से नया बिस्किट नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप किसी फ्रूट को गिराएं, हो सकता है नया फ्रूट वहां से निकल आए या नया पेड़ निकल आए। सो बेसिकली जो अलाइव फूड होता है, जिसके अंदर जान होती है, वो आपको ज्यादा नरिश करता है रादर देन फूड विच इज नॉट अलाइव। सो ये आपको बेसिकली एक ट्रिक याद रखनी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाऊं, अपनी बॉडी को मैं ओवरबर्डन ना करूं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं उसके अंदर। मॉडरेशन में कुछ भी खाएं। आपको किसी ने बताया कि आप काढ़ा पिए, ये जो भी कर लें आप, लेकिन मॉडरेशन में कीजिए। ये नहीं कि आप काढ़ा बताया तो सुबह से रात काढ़ा ही पी रहे हैं। आपने दिन में काढ़ा पी लीजिए, कोई इशू नहीं है। कैफीन को कम कर दीजिए अगर आप लेते हैं तो, अल्कोहल को 0 कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं। एंड बिकॉज दिस इज सच अ लॉन्ग टॉपिक, एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूं, सो आई विल प्रॉब्ली बी रिलीजिंग अनदर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक एंड आई विल सी यू अगेन सून। Have a good day, bye bye, and please subscribe if you like this video. Okay, bye bye.